मैं चाहता हूं, क्योंकि आपने जो मेरा जो सवाल था उसका डायरेक्ट रिप्लाई नहीं किया, कि आपको क्यों लगता है कि तृणमूल कांग्रेस ने आज बॉयकॉट किया आपके अलायंस के मीटिंग को? ऐसा तो नहीं था, उनके नेता नहीं थे, उनके सारे नेता दिल्ली में ही हैं। उन्होंने दे टुक अ डिसीजन, हम नहीं जाएंगे, ऐसा क्यों था? व्हाई डिड दे नॉट गो? कि उनके यहाँ पार्टी की अपनी चीजें हैं, लॉस ऑफ फेस है ना कमेटी की, सेंट्रल कमेटी उन्होंने बना रखी है और उसके बात करने के बाद ही वो जाना चाहते हैं। ये तो लोकतंत्र है, यही तो दर्शाता है कि हमारे यहाँ जो है वो सह नेतृत्व की भावना, कोई किसी से बड़ा और कोई किसी से छोटा नहीं है। यहाँ वन मैन आर्मी नहीं है। इसीलिए हम कह रहे हैं असल भारत जो है वो इंडिया अलायंस के साथ। GVL Narasimha Rao is on the debate. Ladies and gentlemen, only 16 of 27 parties have attended the alliance meeting today. Trinamool has boycotted. Not even a junior functionary went. This is being seen to be a major and very interesting political development. GVL, how do you view this? Arnab, good evening to you and all the viewers. I think this is actually a fear of these political parties that being in the company of the Congress party might actually weaken them even in their backyard in taking on the NDA. I see a dissociation from the INDIA bloc because they see Congress party as a negative force. Parties like Trinamool who are fighting us, they possibly will lose further the moment the Congress party gets tagged on to their political parties. So I see certainly a splintering of this INDIA by the 16th or 18th of this month when they actually decide to come together for another meeting. The negativity that the Congress party is a negative political force and certainly repels electorate. When there is a contest between the BJP and the Congress, is actually now this realization is dawning on the political parties. You might actually see erstwhile UPA partners also dissociating from the Congress because of this factor. The hand of the Congress party might actually be today they might realize that this is a Bhasmasura hand. I think anyone who puts the Congress party on their heads will actually blow up themselves. I think this is the real potential. This is the real fear. No, but it's not just the question of seat sharing that could possibly be used as a ruse to really run away. Shubhankar Chatterjee. Shubhankar Bhattacharya. Is this election going on? Yes, Shubhankar. Yes, I'm quite amazed, why exactly, yes, Shubhankar? All are reading so deeply. Yes, why so much? I completely don't understand. Is it not possible for Mamata Banerjee to be busy? Do you think that any alliance there, you think that anybody could have been sent? No. So let me talk about it. You're reading too much into it and wait for the time to come. This is just one. Hey, this is not just one. Derek O'Brien was in Parliament but did not attend the India Alliance meeting. Can I ask something to No, it's not one. It's not one. No, yes, Vineet. No. Let me come up. See, you people can about election apart. If your partners don't inform you about the meeting, only Sanatan and this. Okay. Very simple. That simply means the DINES does not care for Mamata Banerjee. As simple as that, sir. If you are not informed. No. I'll tell you interestingly, I'm not sure if the Uddhav faction, I'm not sure if the Uddhav Thackeray faction has also attended today's meeting. These are all important developments. Now, I want to just share one thing. Our guest from Samajwadi Party is being very diplomatic, but Manoj Lal Manu ji, जो सच्चाई है उसको तो सामना आपको करना पड़ेगा. मेरे शो में ना करें ठीक है, मगर बाहर तो आपको मानना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में 80 में से 1 सीट मिली है कांग्रेस को, ओनली 1 सीट. पूरे महाराष्ट्र में 1 सीट मिली है, पूरे बंगाल में सिर्फ 2 सीट है, पूरे बिहार में सिर्फ 1 सीट है. पूरे बिहार में मनोज लाल दास मन्नू जी, आप बिहार की परिस्थिति जानते हैं. पूरे बिहार में 1 सीट मिली है कांग्रेस को, है ना. आंध्र प्रदेश में कोई सीट नहीं मिली.
झारखंड में सिर्फ एक सीट, तो अप्रोच बदलना पड़ेगा. आई एम सीइंग इन दिस दैट देयर इज अ मैसेजिंग दैट्स गोइंग ऑन. कांग्रेस विल हैव टू कम ऑन नेगोशिएटिंग टेबल. ये एंटी मोदी एंटी हिंदू बात ज्यादा चलेगी नहीं. ये पार्टियां दे विल टेल कांग्रेस आप कितने सीटों में लड़ रहे हो पहले बताओ. मैं गलत कह रहा हूं क्या मनोज जी, आप मुझे बताइए. देखिए अर्णव जी, गुड इवनिंग. आपने अच्छा सवाल किया है. गुड इवनिंग. और कितने सीटों पर किनको बैठना है, यही तो लोकतंत्र का एक गुण है. और अगर इसको जो लोग नहीं मानते हैं वह आगे चलकर वह धराशायी भी हो जाते हैं. तो लोकतंत्र में है सभी लोगों को बैठना है. आज भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि सभी लोगों को मिलकर बैठकर ही कोई आगे की हम कदम उठाना है. ठीक है, जहां कांग्रेस कमजोर स्थिति में है वहां पर जो क्षेत्रीय दल मजबूत हैं और उनके गठबंधन में अगर वो हैं तो उनके साथ उनको बात करने पड़ेगी. और ऐसा गठबंधन का मतलब ही यही होता है कि हम उनको मैं उत्तर प्रदेश की बात से ये मान के चलिए मनोज लाल जी, भारत की राजनीति में अगर कोई ऑल इंडिया अलायंस बने तो पहले तो उनको सीट शेयरिंग उत्तर प्रदेश में करनी होगी. ये तो कपिश जी भी मानेंगे, आप भी मानेंगे. अगर उत्तर प्रदेश में सीट शेयरिंग नहीं हुई तो देश भर में नहीं हो सकता है. अर्णव जी, उत्तर प्रदेश में ही नहीं सभी प्रदेशों में उनको करना पड़ेगा. जो भी वहाँ के क्षेत्रीय दल मजबूत हैं, जिनकी संख्या ज्यादा है, तो वहाँ पर कांग्रेस हो या कोई हो, गठबंधन के सारे लोगों को मिलकर ही उसको क्लियर करना पड़ेगा. और नहीं करने का कोई सवाल ही नहीं उठता. अच्छा, तो जब हम अलायंस बनाते हैं, तो मैं इसको गठबंधन में आते हैं तो मिलकर उसको बात करना है. 2024 का चुनाव है, 17 तारीख को बैठक है और सही कहा. ठीक है, एक चीज अर्णव जी आपको मानना पड़ेगा कि इंडिया गठबंधन के जो भी घटक दल हैं वो अपनी बात हमेशा कहने से कहीं नहीं सकते हैं. चाहे कोई भी गठबंधन के नेता हो, हमारे भी गठबंधन में हम भी शामिल हैं, हमारे भी राष्ट्रीय या प्रदेश के नेता हैं. इस बातों को वहां पर वो जरूर रख देते हैं. तो बैठक होगी, बैठक में इस चीज को विचार करना ही होगा. विचार नहीं करने से नहीं बन सकता है. और अर्नब, मेरी रुचि इस बात में नहीं है कि एनडीए क्या करेगा. मेरी रुचि इस बात में है कि क्या बिहार में कांग्रेस नहीं मैं ये कह रहा हूँ. कैन आई एक्सप्लेन. एक मिनट अजय जी, एक मिनट मनोज जी 1 मिनट. विनीत जी मनोज जी, आकाशदीप, आई वांट टू ब्रिंग यू इनटू द डिबेट. 2019 बहुत पुरानी बात हो गई. अगर मैं अभी कहूं कांग्रेस पार्टी आज तेलंगाना में बोलेगी कि हमने बहुत अच्छा किया है, हमने सरकार बनाई है, तो हमको ज़्यादा सीट मिलनी चाहिए तेलंगाना में. ठीक है ना. अच्छा, मैं अगर 2019 की बात छोड़िए, अगर मैं असेंबली कंस्टिट्यूएंसी देख लूं, पिछली बार असेंबली में अगर मैं देखूं तो वेस्ट बंगाल में कांग्रेस पार्टी को 3% वोट शेयर मिली है. तो उनको वो मगर पिछली बार दे फॉट ऑन ऑल 42 सीट्स. 42 सीट्स में 2 सीट में जीते और 3% वोट मिला. तो अभी पहले तृणमूल कांग्रेस की नेता बोलेंगी, पहले आप अपने पार्टी यूनिट को बोलिए कि 2024 के बारे में भूल जाए. उसी तरह से अखिलेश जी प्रियंका वाड्रा को बोलेंगी कि अब उत्तर प्रदेश में भूल जाइए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आपको कितने सीटें मिली थी? आपको 2.4% वोट मिली थी. आप क्यों उत्तर प्रदेश में बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश में आपको मैं बताता हूं, बिहार में 1 सीट मिली है. तो नीतीश जी, लालू जी कहेंगे पहले आप बिहार में अपने यूनिट को बोलिए कि आप चुप हो जाइए, कुछ मत करिए, अगले स्टेट इलेक्शन तक बात मत करिए, 2 साल तक अपने ऑफिस पे ताला लगा दीजिए. नहीं तो इस अलायंस का मतलब ही नहीं. आकाशदीप, डू यू अंडरस्टैंड? अभी हार्ड नेगोशिएशन होने वाला है. जी देखिए अर्नब जी, अलायंस जो होता है वो कोई सिंगल पार्टी रूल नहीं होता जैसे भारतीय जनता पार्टी का एनडीए है. अलायंस इंडिया अलायंस फिलॉसफी वाली बातें हैं सबका. दिस ऑल फिलॉसफी है, ये सब फिलॉसफी, पॉलिटिक्स नहीं है. ये रियलिटी है.
आप आम आदमी पार्टी को देखिए, फिलॉसफी है, पंजाब और फिलॉसफी। दिल्ली में वहां पे भी आप राजनीतिक बात करिए, आध्यात्मिक नहीं। ये आध्यात्मिक तो भारतीय जनता पार्टी करेगी। मैं तो फैक्ट्स बता रहा हूँ सर। आध्यात्मिक तो ये तो इनका है ही, बट द फैक्ट आप तो चिढ़ते हैं ना, आध्यात्मिक बात भी हो तो आप चिढ़ते हैं, आप एंटी सनातन लाइन लेते रहते हैं हर वक्त। बोलिए, आपने कब मुझे देख लिया एंटी सनातन लाइन लेते हुए? मैंने तो डीएम को भी डांटा था कि नहीं, जो उन्होंने किया, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश में क्या रिजल्ट हुआ हम सबको पता है, बट उस पर हम आज नहीं जाते हैं। बात यह है कि ना कि जो इंडिया अलायंस है वो पूरा भारत को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि उसमें सारे दल हैं, उसमें सारे आइडियोलॉजीज हैं, और सब लोग एक साथ आके एक कंपोजिट इंडिया रिप्रेजेंट करते हैं। और चाहे वो वेस्ट बंगाल, ये सब बड़ी बड़ी बात है। पंजाब में कितने सीट देगी आम आदमी पार्टी? पंजाब में कांग्रेस को कितनी सीट देंगी? पंजाब में कितनी सीट देंगी? ये हम अलायंस है, हम अच्छे लोग हैं, आप बुरे लोग हैं, हम एक साथ काम करते हैं, आप अकेले चलते हैं, ये सब बड़ी बड़ी बात है। कितने सीट देंगे आप? कितने सीट देंगे आप? डिसाइड होता है कांग्रेस को कमेटी में, और ये 117 सीटों पे उन्होंने कंटेस्ट की थी पिछली बार। इस बार कितने सीटों पर करेंगी? How many seats will the Congress contest in Punjab? Come on, tell जब me. आम आदमी पार्टी लीड कर रही है पंजाब और दिल्ली में, तो वहां पे आम आदमी पार्टी को ज्यादा सीट मिलेगी। ऑब्वियस ये बात है। अगर जहां पे समाजवादी पार्टी लीड कर रही है उत्तर प्रदेश में, वहां पे समाजवादी पार्टी को ज्यादा सीट मिलेगी। ये तो ऑब्वियस सी बात है। पर जो and your boss Arvind Kejriwal is known to ये होने वाला नहीं है। Tell me whether he is backstabbed Annaji or not. Please tell me whether he is backstabbed other people or not. जिससे कि नहीं 120 सीटें उनको जीतनी पड़ेगी। ये तो देखिए, कोalition यही होता है। कोalition जो वाजपेयी जी के टाइम पे था, यही था भारतीय जनता पार्टी का भी कोalition, जहां पे कि ना कि सारे पार्टियों का एक पर्टिकुलर स्पेस रहता था। ये इंडिया अलग कोalition है। इंडिया कोalition नहीं है, वन मैन रूल है ऑब्वियसली, जहां पे एक आदमी की चलती है, जनता की नहीं चलती। तो ठीक है, कोई बात नहीं। कोalition जो इंडिया कोalition है, उसमें जहां पे नहीं, एक पार्टी इतनी बड़ी है, 1:1 रेशियो में टिकट बांटी जाएगी। ये बहुत कोalition के लीडर्स बता चुके हैं। ठीक है, 1:1 जो जहां पे एक इंडिया गठबंधन का बंदा भारतीय जनता पार्टी के साथ डायरेक्टली लड़ेगा।